Students, hope you are all right and welcome back to my English class. So today we are starting block 8, that is concluding a story, and you will be able to change active voice into passive voice sentences. So active voice, you have also learned about this topic in previous classes in 5th class, 6th class, 7th class. So let's have a recap. So active voice is when subject is important, when the doer of the work is important, like mother is cooking the food, like here mother is important. पैसिव वॉइस वर्क और द एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, जब काम इम्पोर्टेंट होता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। लाइक हम बोलते हैं कि टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन रही है। हमने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कि चाय बना कौन रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाय बनना इम्पोर्टेंट है। सो इन पैसिव वॉइस वी ऑल्सो यूज़ V3 like done, had, bitten. Always you will see that in passive voice sentences there is always use of third form of the verb. It has been done by me. Ram was bitten by the teacher. So V1, now let's have a look at some rules. When there is first form of the verb, you will also always change the sentences in ismr and V3. When there is V2 in the sentence, वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर है तो आप was were और थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर हैज़ हैव हैड आपको दिया हुआ है तो हैज़ हैव हैड के साथ आप बीन लगाएंगे, ing है तो बीइंग लगाएंगे, विल शेल है तो विल शेल बी। Now let's have a look at some examples. I play cricket. Play is first form of the verb, simple present tense. V1 है यहाँ पे, so cricket को हम subject बना देंगे। cricket और rule क्या था, first form के साथ is MR आता है। cricket is played by me, I change हो गया me में। She broke the window. broke second form है, second form है तो यहाँ पे was were आएगा और third form always आती है, so the window को आगे ले आएंगे। The window was broken by her. My father is watering the plants. is watering present continuous है, काम अभी हो रहा है। so the plants, अब father singular थे तो is आया था यहाँ पे, plants plural है तो are आएगा, और ing है तो being। the plants are being watered by my father, watered third form है। Ram has bitten me, so me का I बन जाएगा यहाँ पे। so Ram singular है, has I के साथ have, I have been bitten by Ram। we will discuss the matter will be discussed by us। so how does changing a few sentences into another voice affect a paragraph, कि किसी भी पैराग्राफ में अगर हम वॉइस को चेंज कर देते हैं तो कैसे अफेक्ट करता है। Having a mix of sentences in a paragraph or the story makes it more readable. Since active voice is more direct, it makes the paragraph more alive and interactive. However, there are sentences in where the subject is not important and the passive voice is preferred. कई बार ऐसे sentences होते हैं जिनमें subject important नहीं होता है, only action important होता है, उसमें हम passive voice को prefer करते हैं। Like कई बार गेस्ट आते हैं आपके घर में, आप लोग बोलते हो नहीं अंकल अभी मत जाइए, अभी चाय बन रही है। आप ये नहीं बताते हो कि मम्मी चाय बना रही हैं या आपकी दीदी चाय बना रही है, आप सिर्फ ये बोलते हो कि अभी वेट कीजिए चाय बन रही है। टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, सो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट मंथ, स्कूल विल बी रीओपन्ड। सो यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू योर S1। लेट्स हैव अ लुक एट S1। नाउ क्वेश्चन 1 एट पेज नंबर 37, राइट द सब्जेक्ट एंड द वॉइस इन विच द सेंटेंस हैव बीन रिटन। आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, वॉइस मेंशन करनी है। सो ये पार्ट इज स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द चिल्ड्रन, की मिठाइयाँ बच्चों को बांटी गई। सो सब्जेक्ट इज चिल्ड्रन एंड वॉइस इज पैसिव। शी टोल्ड मी टू लीव द रूम, सो सब्जेक्ट इज शी एंड वॉइस इज एक्टिव। हु किल्ड द टाइगर, सब्जेक्ट इज हु एंड वॉइस इज एक्टिव। वन शुड obey one's parents, subject is one and voice is active. We shall be blamed by everyone, subject is we and voice is passive. Now question 2, write AV above the sentences written in active voice and PV above the sentences written in passive voice. Then rewrite the sentences by changing its voice. सो जो एक्टिव वॉइस है वहाँ पे आपको ए वी मेंशन करना है, जो पैसिव वॉइस है वहाँ पे आपको पी वी मेंशन करना है, और इनकरेक्ट सेंटेंसेस को और जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस है आपको उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ए पार्ट। शेल वी एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या हम कभी उन खुशियों के दिनों को भूल पाएंगे। सो शेल यहाँ पे क्वेश्चन है, ये शेल ही रहेगा यहाँ। दोज हैप्पी डेज को आप आगे ले आइए, सब्जेक्ट बन जाएगा एवर बी। विल और शैल के साथ मैंने आपको बताया था कि बी आता है हमेशा। सो शैल दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द फॉरगेट इज फॉरगॉटन बाय अस, वी का अस बन गया यहाँ। सो हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था। सो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय होम, डिस्कवर्ड सेकेंड फॉर्म है तो वॉज डिस्कवर्ड आ गया, बाय होम। द टेलीग्राम हैज़ जस्ट बीन रिसीव्ड,
सो यहाँ पे आपको एक्टिव में चेंज करना है। वी हैव जस्ट रिसीव्ड द टेलीग्राम। सो वाई वर यू पनिश्ड बाय द टीचर। सो ये भी पैसिव वॉइस है, वर आ रहा है यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म आएगी वाई डिड द टीचर पनिश यू। यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टू राइट 3-4 सेंटेंसेज ऑन द टॉपिक एन इवनिंग विद फ्रेंड्स। सो आपको टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, एन इवनिंग विद फ्रेंड्स, आपको 3-4 सेंटेंसेज बनाने हैं पैसिव वॉइस में। एंड दिस क्वेश्चन इज यू हैव टू डू योर सेल्फ